لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. السلام علیکم. انڈین حج مشن کے میڈیا سینٹر مکہ کی طرف سے آپ سبھی ناظرین کو عبدالعزیز کا آداب. آئیے ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر ایک نظر. مبارک فریضہ حج ادا کرنے کے بعد ہندوستان لوٹنے والے عازمین حج کی تعداد 90,123 کے پار پہنچ چکی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,104 حجاج کرام مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک حاجی کا انتقال. خبروں کے آخر میں دیکھیے مدینہ منورہ میں انڈین حج مشن کے جنرل ویلفیئر سیکشن کے انچارج AHO جناب محمد یعقوب صاحب سے حجاج کرام کی خدمت کے سلسلے میں ایک بات چیت تفصیل سے. گزشتہ روز بروز بدھ 21 نومبر 2012 کو مزید 19 اور اڑانوں کے ذریعے 5,459 حجاج کرام مبارک فریضہ حج ادا کرنے کے بعد ہندوستان خیریت و عافیت سے لوٹ چکے ہیں. ان ہوائی اڑانوں میں 5 ہوائی اڑانیں سعودی عرب کے جدہ بین الاقوامی ہوائی اڈے سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو چکی ہیں اور ان اڑانوں کے ذریعے 1,671 حجاج کرام ہندوستان پہنچ چکے ہیں اور 14 اڑانیں مدینہ منورہ کے ہوائی اڈے سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو چکی ہیں اور ان اڑانوں کے ذریعے 3,318 حجاج کرام ہندوستان لوٹ چکے ہیں. اس طرح سے اب تک کل 306 ہوائی اڑانیں سعودی عرب کی پاک سرزمین سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو چکی ہیں اور ان اڑانوں کے ذریعے اب تک کل 90,123 حجاج کرام ہندوستان پہنچ چکے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,104 حجاج کرام کا ایک قافلہ مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکا ہے. اب تک مکۃ المکرمہ میں 3,318 حجاج کرام قیام پذیر ہیں اور مدینہ منورہ میں 31,268 حجاج کرام قیام پذیر ہیں جو کہ اپنی اپنی عبادتوں میں مصروف ہیں. انڈین حج مشن کے جنرل ویلفیئر سیکشن میں پچھلے 24 گھنٹوں میں مختلف جگہوں پر حجاج کرام نے پیسے گم ہونے کے 5 کیسز مدینہ منورہ میں درج کرا چکے ہیں. اس طرح اب تک کل 1,247 حجاج کرام نے پیسے گم ہونے کے کیس درج کرائے ہیں اور ان سبھی حجاج کرام کو مدد فراہم کی گئی ہے. 24 گھنٹوں میں ایک حاجی کا انتقال مکۃ المکرمہ میں ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین. اس طرح سے اب تک کل 189 حجاج کرام کا انتقال ہوا ہے جن میں مکۃ المکرمہ میں 133 حجاج کرام، مدینہ منورہ میں 31 حجاج کرام، جدہ میں 3 حجاج کرام اور مقام مشاعر میں 22 حجاج کرام. آئیے اب دیکھتے ہیں مدینہ منورہ میں انڈین حج مشن کے جنرل ویلفیئر سیکشن پر ایک رپورٹ اور وہاں کے انچارج AHO جناب محمد یعقوب صاحب سے حجاج کرام کی خدمت کے سلسلے میں ایک بات چیت. السلام علیکم. ہم آئے ہیں مدینہ منورہ میں انڈین حج مشن کے آفس میں جنرل ویلفیئر سیکشن میں. یہاں کے AHO صاحب ہیں محمد یعقوب ملک صاحب. آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کب سے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کس طرح سے حجاج کرام کی خدمت کی ہے اور حجاج کرام کی پریشانیوں کو دور کرنے کی انہوں نے کس طرح سے کوشش کی. آئیے ہم انہی سے جانتے ہیں. وعلیکم السلام. میں جنرل ویلفیئر میں ویسے تو AHO کام کر رہا ہوں. اللہ کے فضل سے ہم نے یہاں جنرل ویلفیئر میں کوشش کی کہ حاجیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیت مہیا کرانے کی. ہمارا ویلفیئر سیکشن 3 ایریاز دیکھتے ہیں. نمبر 1 ہے منی لاسٹ
जो हाजी साहब का पैसा खोया जाता है उनको हम इमीडिएट रिलीफ यहाँ देते हैं ताकि वो अपना गुजारा कर सके, और फिर लास्ट में उनका वो क्लेम भी कंप्लीट होती है, उनको वो बाकी पैसा भी मिल जाता है। दूसरा हम एरिया देखते हैं मिसिंग हाजीज। मिसिंग हाजी जब कहीं खो जाता है तो अपने यहाँ नहीं पाया जाता तो हम टास्क फोर्स को के जरिए उसको अपने होटल में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और तीसरा एरिया है बिल्डिंग कंप्लेंट्स। बिल्डिंग कंप्लेंट्स में हमारे पास जहाँ हाजीज बिल्डिंगों में रहते हैं होटलों में, वहाँ हम वेलफेयर देखते हैं। उनके पास ड्रिंकिंग वाटर है, फैन चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, गीजर चल रहा है, लिफ्ट चल रहा है, खासकर सैनिटेशन सफाई है वहाँ, तो हर एक सहूलियत वहाँ मुहैया है। बेड ठीक है, बेडशीट ठीक है, उनकी देखभाल के लिए हम फील्ड स्टाफ को मुतहरिक करते हैं। टोटल मिसिंग हाजीज हैज बीन रिपोर्टेड 453. As soon as we reported that any haji is missing from haram or any otherwise, we are informed our task force in the haram. They are gear up their field staff and get the located of the haji and taken him to his hotel in the room. तो माशाल्लाह आज तक सारा ठीक चल रहा है, और कोशिश हमारी यही है कि हाजी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलनी चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ गवर्नमेंट ने तैनात किया है। और इंशाल्लाह अभी हमारा 1 दिसंबर लास्ट फ्लाइट है यहाँ से इंडिया को, तब तक हम यहाँ इनको पूरी कोशिश करेंगे किसी हाजी साहब को कोई परेशानी नहीं। हमारे खुदामुल हुजाज भी हमने मुतहरिक किए हैं, वो भी यहाँ आ रहे हैं, हमारे पास हाजिरी कर रहे हैं। उनसे हम हिसाब लेते हैं रोजाना कि उनको अपने हाजी के साहिब के जो बिल्डिंग में रहते हैं उनकी खिदमत करे और उनके दुख दर्द को बांटे। बहुत से हाजीज बीमार पड़ते हैं, हम खुदामुल हुजाज को कहते हैं उनको फटोफट हॉस्पिटल ले जाइए, मेडिकल कोऑर्डिनेटर्स के कंसल्टेशन से तो उनका भी वेलफेयर देखा जाता है। टोटल डेथ केसेस आकर जहाँ तक हमारा मदीना में हुई है 34 हुए। आउट ऑफ दिस 5 आर टूर ऑपरेटर्स, आउट ऑफ 34 5 आर टूर ऑपरेटर्स। These are the figures up to this on 19th night. आइंदा भी इंशाल्लाह इन्हीं अंधा कोशिशों से हाजी साहब की खिदमत करेंगे जहां तक सारे हमारे हाजी साहब अपने अपने घरों को इंडिया वापस जाएंगे। याकूब मलिक साहब, आपने अभी हमें बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर 3 सेक्शन की जिम्मेदारी है, जिसमें पैसे गुम होने की जिम्मेदारी, और उसके बाद जो है बिल्डिंग वेलफेयर की जिम्मेदारी, और उसके बाद मिसिंग पिलग्रिम्स की जिम्मेदारी। और इसे आपने इस जिम्मेदारी को और आपने और आपके स्टाफ ने बखूबी निभाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इस कोशिशों को अल्लाह कामयाब करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। हम मदीना मुनव्वरा में आए हैं इंडियन हज मिशन के वेलफेयर सेक्शन में। यहाँ पे कुछ हज्जाज किराम मौजूद हैं जिनकी परेशानी यहाँ पे अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए आए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि हज्जाज किराम की क्या परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। आपसे हमारी गुजारिश है कि आपकी क्या परेशानी है, आप जरा बताइए। जब हमें मक्के से यहाँ रवाना हुए मदीने को, बिल्डिंग पर ले लगे सामान पूरा मौजूद मिल गया, वहाँ जगह रूम नहीं थी, और दूसरी बिल्डिंग को शिफ्ट करे। जब ये एड्रेस पर ये बिल्डिंग को शिफ्ट करे टाइम पर सुबह को आता लगे तो मैं आज होकर हमने बिठा कर भेज डाले। जब हमने रूम दे डाले हमें ये सुबह को लगे जाने के टाइम पर हमारा बहुत बड़ा सूटकेस है वो हम लोग को नहीं मिला, उसमें बहुत कुछ सामान है मेरे पैसे। आपने देखा कि हुज्जाज किराम का सामान जो पूरी तरह से गुम हो गया और हुज्जाज किराम परेशान है। आइए हमारे स्टाफ ने उनकी सहूलत के लिए क्या इंतजाम किया है, आइए उसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है? खादिमुल उजाज KHR GF 2180-1। ये पीर मोहम्मद है जो भीलवाड़ा से हैं, इंडिया से। इनका कवर नंबर है 3437। जो जद्दा से आए एयरपोर्ट से इनका बैग 3 बैग मिस हो गए थे, तो इनका अभी तक नहीं मिला है, इसलिए हमने इनका क्लेम बनवाया। तो क्लेम बना करके आज इनको क्लेम मिलने वाला है, क्लेम पास हो गया है। इंश्योरेंस क्लेम जो 15,000 रुपये इंडियन मनी हमने इनका क्लेम बनवाया। तो अभी यहाँ 1200 के लगभग ये 1200 रियाल के लगभग इनको आज पेमेंट होगा। इंडियन हज मिशन के यहाँ AHO है, वहाँ से दाऊद शेख है जो 9 नंबर ब्रांच है, उन्होंने लेटर बना के दिया था
फिर कोऑर्डिनेटर यूडी खान साहब हैं, उन्होंने भी कोशिश करके ये आज पास मिले। लेकिन ये लॉस्ट बैगेज का है, जद्दा एयरपोर्ट विसर्जन बहुत परेशान होते हैं जी। आइए देखते हैं हमारे हुज्जाज इकराम की अभी आपने परेशानी सुनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज मिशन के स्टाफ ने उनकी परेशानी दूर करने के लिए उनका क्लेम बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको उस क्लेम के पैसे अभी मिल रहे हैं। आइए हम हुज्जाज इकराम से जानते हैं कि उनकी कैफियत। हाजी साहब, हमें बताइए कि अभी जो आपको पैसे मिले हैं, क्या आप उससे खुश हैं? हाँ खुश है साहब, खुश है साहब, बहुत खुश। बस तो इंडियन हज मिशन ने आपका जो सामान जो गुम हो गया है उसके बदले में आपको कुछ जो मुआवजा देने की कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह उस मुआवजे से आपको उसके थोड़ा मदद हो जाएगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपको इस जो मुआवजे से भी आपकी जो परेशानी दूर हुई उसके लिए भी हम मिशन की तरफ से हम भी माफ़ी भी चाहते हैं कि आपको जो तकलीफ है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इसी के साथ ही आज की खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो रहा है। आइए अब अब्दुल अजीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।